Yes, good afternoon, Vanshika. Good afternoon, sir. अभी एक ही स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन किया है. And how is the preparation, Vanshika, for the exam? It's good. Preparation ठीक है तुम्हारी. और कोई डाउट तो नहीं है रिगार्डिंग द एग्जाम्स? No, sir. ठीक है. So let's say we start with the first question. So match the following clauses with the respective function. On the left hand side the values are given. Just एक मिनट रुक जाओ. Let's say one more student is joining in. Yes, good afternoon, Manat. Good afternoon, sir. हाँ, so ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम database. Match the following. So yes, Vanshika will start answering this one by one. Sir, alter, change the name of a column. Yes. Second is next one- update. Update existing information in the table. Yes, so that is update existing information in the table. Yes, fine. Yes, moving to the third. Delete an existing row from a table. Yes, delete an existing row from a table. Fourth one. Insert the values in a table. ठीक है. Constraints. Restrictions on columns. And then is desk. Describing the structure. Yes, describing the structure. ये कौन सा ऑप्शन है ये? Table definition. Yes, table definition. Yes, it's fine. Yes, next, last is create. Database. So that is to create a database. So that is how we can match. Next question is choose the appropriate answer with respect to the following. And next we have basically create statement given. So let us say few more people are joining in, let them join in. So choose the appropriate answer with respect to the following code. Create table का code given है हमारे पास, and constraints, primary key constraints has been applied on the student ID. So first question is what will be the degree of the table? Yes, Manat Sharma. Sir, 3. 3. Why 3? Because there are 3 columns. Yes, so degree is basically the how many columns we have in our table. Yes, next is Harshita. Next करो आप attempt. What does name represent in the above? Above code. ठीक है, तो उसमें name क्या represent कर रहा है? ABCD. यहाँ then
अच्छा, name. Sir, column. Yes. So name is representing a column here in this particular code. Yes, moving to the next. How many persons we have joined in? Yes, Ajay Pratap, are you ready? कैमरा ऑन कर लो बेटा, कैमरा. यस सर. So सर कैमरा ऑन किया है, थोड़ा इंटरनेट इशू है. ठीक है, नेक्स्ट सी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप. सी क्वेश्चन पढ़ लो पहले. What is true about the following SQL statement? Select from star. Answer is first. Yes. Sir, one answer is इसका. One displays the contents of the student table. So next we have D question. What will be the out of the following query? So who is the next person who will assist? Yes, Dilbag Singh. Yes, Vanshika, आप करो try. Sir, error. Error. So why there will be error? Sir, because it is not in a proper format. Values has been used number of times. पक्का है ये? So this will generate the error. Moving to the fifth question. Yes, Mannat. In the following query, how many rows will be deleted? Delete student where student ID is equal to 109. First, one row. Second, all the rows where student ID is equal to 109. Third, no row will be deleted. Fourth, two rows. So one row. One row. दूसरा ऑप्शन भी वैसे all the rows where student ID is 109. जब प्राइमरी की नहीं होगी तो नहीं होगी तो वन रो जो हो मतलब होगी तो वन रो जो नहीं होगी तो सेकंड. ठीक है. वैसे बेसिकली तो अगर प्राइमरी की उसने बनाया हुआ तो एक ही रो होगी, इसमें मल्टीपल रोज तो होगी नहीं. बट इधर इसने क्या किया हुआ है, 109 को मल्टीपल बार इसने एंटर करने की कोशिश की हुई है इधर. ठीक है. सो द सेकंड ऑप्शन इज ऑल द रोज वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 109. ये भी सही है ऑप्शन, और यही सही है बिकॉज हमें तो इसने बताया नहीं है इसमें कि 10 ये ऊपर वाले कोड में लिखा हुआ है. सो थोड़ा एलिमेंट ऑफ एम्बिग्यूटी है इस तरह के क्वेश्चन में. ठीक है, क्योंकि ऊपर तो कोई रो इंसर्ट नहीं की हुई और ऊपर स्टूडेंट आईडी को इसने प्राइमरी की बनाया हुआ है. प्राइमरी की बनाया हुआ है तो मल्टीपल रोज होगी नहीं, वहां पे एक ही रो डिलीट होगी. ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये फर्स्ट रो इज जो वन रो आपने बताया एक ही रो होगी टेक्निकली, इसमें तो मल्टीपल रो तो एग्जिस्ट करेंगी नहीं. दूसरे में ऑप्शन ये दे दिया ऑल दी रोज विद स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 109, बट एक्चुअली तो होता यही है, जहां जहां पे भी ये 109 होगा वहां वहां पे ये डिलीट हो जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज एम्बिग्यूटी इन दी आंसर. यस.
Moving to the next question is, third question is fill in the blanks. So first question is dash declares that an index in one table is related to that in another table. So dash declares that the index in one table is related to the dash in another table. So प्राइमरी की है, फॉरेन की है, कंपोजिट की है और सेकेंडरी की है. यस हर्षिता. Sir, I think it's foreign key. ठीक है, we'll just check it out क्या है इसमें. Dash declares that an index in one table is related to that in another table. So that is the primary key. प्राइमरी की, फॉरेन की और कंपोजिट की. कंपोजिट की और सेकेंडरी की का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. दूसरा हमारे पास फॉरेन की. फॉरेन की क्या करती है? फॉरेन की का बेसिकली दैट डिक्लेयर्स वन इंडेक्स, that an index in one table is related to the index in the another table. So here the question is related to the index. Maybe yes, foreign key का concept ही है basically where the values we are saying that values are basically matching in one table with another table. Yes, Vanshika. So second question. नहीं, same question. Sir, foreign key. Yes. Now we move to the next question is B question. Yes, Vanshika आप ही पढ़ो. The symbol asterisk in a select query retrieves all data from the table. So all data from the table, data from primary key only, null data and none of the mentioned. So that is the first is the right answer. So my request to is Tarun Jyot, Rajveer, Dilbag और कैमरा ऑन कर लो भाई. क्या पता चल रहा है कौन एक्टिवेटेड है, कौन क्लास छोड़ के चला गया है. Yes, Tarun Jyot, next question को आंसर करो. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है. Yes, Tarun Jyot. Dilbag Singh. Yes, sir. हाँ पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो. Consider the following movie database and answer the SQL queries based on it. हाँ फर्स्ट क्वेरी पढ़ो. Retrieve movies information without mentioning their column names. Sir, without mentioning their column names से कैसे होगा sir? Yes, Manat Sharma. Yes, sir. Same question. Select star from table movie. Yes. तो इसमें क्या किया हमने? We have not mentioned the column name and we will get the relevant information. हाँ जी, दूसरी क्वेरी. यस मन्नत आप ही पढ़ो. List business done by movie showing only movie ID, movie name and business cost. Select business cost where movie ID, movie name and business cost is not equal to 0 or null. इतनी जबरदस्त क्वेरी बना दी है तूने क्वेश्चन में. अच्छा चलो ये छोड़ दो. अच्छा ये बताओ मन्नत, मेरा क्वेश्चन, अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर लिया है. ये क्वेरी में पूछा क्या? व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेरी?
कि जिनकी मूवी आईडी दिस बिजनेस डन बाय मूवीज शोइंग जिसमें लाइक तीनों मेंशन है, मूवी आईडी, मूवी नेम, बिजनेस कॉस्ट, उन सब का जितना बिजनेस है वो वो हमें चूज निकालना है। श्योर नेगोशिएशन। हाँ जी, हाँ जी, हर्षिता बताएगी, हर्षिता। Sir, in second, that we have to list the business done by the movies. So we movie name and business which is the database. आवाज टूट के आ रही है, कि फिर से रिपीट करोगे आंसर को? Yes, sir. सर उन्होंने पूछा है कि बिजनेस कितना किया है, ये हम सिलेक्ट मूवी आईडी, मूवी नेम एंड बिजनेस कॉस्ट फ्रॉम मूवी डाटाबेस। मूवी मतलब टेबल का नाम। हाँ, बस ठीक है, बस यही आएगा मेरे हिसाब से। सिंपली ये तीन। यस सर। Yes, yes, we take the answer from Vanshika also. Vanshika. According to me, select movie ID, movie name, business cost from movie where business cost is not null. Where business cost is not, तो हम अगर हम तीनों को डिस्प्ले करवा ले, हमें क्या लेना देना, बिजनेस कॉस्ट चाहे नल आ जाए, उसमें क्या है हमारे पास आंसर। हम तीनों को लिस्ट करवा देते हैं, लिस्ट सॉरी, सिलेक्ट मूवी आईडी, मूवी नेम, बिजनेस कॉस्ट फ्रॉम लिस्ट द बिजनेस डन बाय द मूवीज। तो कुछ नहीं बिजनेस किया उन्होंने, क्या है हमारे पास, नल से आ जाएगा, नहीं बिजनेस किया। सो जैसे हर्षिता ने बोला, हर्षिता हैज रिटन लाइक सिलेक्ट मूवी आईडी, मूवी नेम, बिजनेस कॉस्ट फ्रॉम द टेबल। सो इससे भी चल जाएगा मेरे हिसाब से, कोई ऐसा उसने पूछा नहीं है कि बिजनेस जीरो किया हो या ऐसा है, सो हैज नॉट आस्क्ड द कंडीशन इन दैट। सो मूविंग टू दी, हाँ जी, दिलबाग सिंह। यस सर। आपने कोई Sir, क्वेश्चन third. पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेरी पढ़ो आप, नेक्स्ट दिलबाग। List the different categories of movies. यस, तो कैसे करोगे इसको? पहले बताओ कौन कौन सी कैटेगरी की है मूवी, कौन कौन सी है, टेबल से देख के बताओ। Sir, हिंदी, तमिल, इंग्लिश, और यार बंगाली, तेलुगु। ये तो मूवी नेम है, कैटेगरी बतानी है, कैटेगरी ऑफ मूवीज। सर म्यूजिकल, एक्शन, हॉरर, एडवेंचर, कॉमेडी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्शन 2 बार है। एक्शन 2 बार है, तो कैटेगरी, लिस्ट द डिफरेंट कैटेगरीज, कैसे करोगे इसको, बता सकते हो इसका आंसर? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। सर सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरी फ्रॉम मूवीज। Very good, very good. So all the different distinct categories will be displayed in the result. बहुत अच्छा। As moving to the D part, and let us say who is, हाँ जी, तरनजोत करोगे ट्राई? तरनजोत, वो कैमरा ऑन करो, तरनजोत दिलबाग। यार कैमरा ही नहीं आप ऑन करते अब। Yes, next question is with Manat Sharma. Yes, Manat, आप D. Find the net profit of each movie showing its ID, name and net profit. नेट प्रॉफिट का उसने फार्मूला बता दिया नीचे, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू बिजनेस कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट। select movie ID, name, पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। हाँ, नेट प्रॉफिट भी उसी के अंदर आप कैलकुलेट कर लोगे, क्वेरी के अंदर ही आप लिख दो, वहां पे क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू लाइक दिस। आप
आप वहां पे लिखोगे बिजनेस कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट एज नेट प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे हम ऐसे फार्मूला नहीं लिख सकते। वहां पे क्या लिखेंगे जो आपने बोला है, शोइंग दी, सबसे पहले लिखना है हमने सिलेक्ट मूवी आईडी, देन मूवी नेम, और थर्ड नंबर पे लिखना है हमने बिजनेस कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट एज, उसका आप जो भी टाइटल लिखा हुआ है एज नेट प्रॉफिट Net profit. फ्रॉम दी टेबल नेम इज, जो भी टेबल नेम है क्या हमारा, मूवी इज द टेबल नेम। यस हर्षिता, ऐसे ही होगा। सर तो फिर बिजनेस कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट को ब्रैकेट्स में डालेंगे? ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो। Okay, sir. ऐसा क्या है उसमें ब्रैकेट्स, वी कैन यूज, जहां जहां पे हमें ऐसा एक्सप्रेशन है वी कैन यूज दी ब्रैकेट्स आल्सो। हो जाएगा ऐसे आंसर या नहीं होगा? पक्का नहीं है पता, मेरे को लगता है ये शायद हमारे पास इसका टेबल भी बड़ा हो जाएगा सर। नहीं, इसमें नहीं है। सर हो जाएगा। हैं? हो जाएगा। हो जाएगा सर। कोई बात नहीं, हमारे पास है टेबल पड़ा हुआ। एक मिनट। ठीक है, तो ये है हमारे पास मूवी टेबल। और क्या था हमारे पास, दैट इज सिलेक्ट मूवी आईडी, then is movie name, and next was basically business cost minus here, so you get the net profit. So now we move to the E part. Yes, Vanshika. List all movies with production cost greater than 80,000 and 1,25,000 showing ID, name and production cost. Select movie ID, movie name, production cost, where production cost is greater than 80,000 and less than 1,25,000 from movie. From Movie. क्या? From movie. Table name. फिर से बोलोगे, फिर से क्वेरी बोलोगे एक बार फिर से? Select movie ID, movie name, production cost, from movie where production cost is greater than 80,000 and less than 1,25,000. हाँ, पहले क्या गलती की थी? From movie was by mistake. हाँ, चलो Correct last. कोई बात नहीं, गुड। तो बेसिकली क्या है कि दैट इज जब हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिए उसके बाद हमें फ्रॉम टेबल मेंशन करना है, उसके बाद वेयर क्लॉज का यूज करना है। सो मूविंग टू दी नेक्स्ट F क्वेश्चन,
Yes, Manat Sharma. List all movies which fall in category of comedy or action. Select movie. Select movie where category is comedy and action from movie. अभी Select मैंने movies आपको सही आंसर बताया, किस वे से आंसर करना है, आपने फिर से गड़बड़ कर दी है। with- यस, हर्षिता बताएगी, हर्षिता। Sir, select movie name from movie where category equals to comedy or action. कैटेगरी इक्वल टू कॉमेडी और कैटेगरी इक्वल टू एक्शन। Action. ठीक है, वेयर क्लास का यूज हमें हमेशा बाद में करना है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन सर, में इसमें- दो चीजें कंडीशन में है कि कैटेगरी या तो कॉमेडी हो सकती है या एक्शन भी हो सकती है। तो इन नेम से जो जितनी भी मूवीज हैं, ऑल दी मूवीज विल गेट सिलेक्टेड। सो सर मेंबरशिप भी यूज कर सकते हैं, मेंबरशिप इन क्या? इन हाँ, सर इनका भी यूज कर मेंबरशिप सकते हैं, इनका भी यूज कर सकते हैं। मेंबरशिप, इन इज ए मेंबरशिप ऑपरेटर, सो इनका भी यूज कर सकते हैं। सो वी कैन आंसर द क्वेरी इन मल्टीपल वेज। ठीक है, तो उसमें हम कर सकते हैं कैटेगरी इन कॉमेडी कॉमा एक्शन, तो उसे हम इन से भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिलबाग है सेड दैट अगर हम so let us say select, वैसे तो हम स्टार का भी यूज कर सकते हैं। सो वेयर कैटेगरी इन, क्या था हमारे पास, एक था एक्शन था, और दूसरा मेरे हिसाब से था कॉमेडी। So you will get the movie name as Tamil movie, Telugu movie and Punjabi movie. They fall in the category of action comedy category. And the next question is, list the movies which has not been released. Yes, Dilbag, आप करो आंसर, दिलबाग। सर सिलेक्ट मूवी नेम। सर ऊपर करना, क्वेश्चन दिखाना। मैं तो टेबल दिखा रहा था। Yes, list the movies which have not been released. टेबल से देख लो, आपको टेबल से पता चल जाएगी कौन कौन सी मूवी रिलीज नहीं हुई। सर सिलेक्ट मूवी नेम फ्रॉम द मूवी वेयर रिलीज डेट इज नल। वेयर रिलीज डेट इज नल। दो मूवी हैं जो अभी रिलीज होने वाली है, तेलुगु मूवी एंड पंजाबी मूवी। दे आर येट टू बी रिलीज्ड, सो दैट यू कैन सी इन द टेबल। ये तेलुगु मूवी और पंजाबी मूवी जो है, ठीक है, इसकी दोनों की रिलीज डेट हैज नॉट बीन मेंशन्ड। Yes, good answer by Dilbag. So next we move to the question number 5. Yes, Manshika. Board for school management has decided to conduct cricket matches between students of class 11 and class 12.
Students of each class are asked to join any one of the 4 teams, Team Titan, Team Rockers, Team Magnet, and Team Hurricane. During summer vacations, various matches will be conducted between these teams. Help your sports teacher to do the following. Create a database supports. Next. Create Deepa. a table team with the following considerations. It should have a column, the column team ID for storing an integer value between 1 to 9, which refers to the unique identification of a team. B part. Second point. Each team ID should have its associated name, team name, which should be a string of length not less than 10 characters. C point. Using table level constraint, make team ID as primary key. Show the structure of the table team using SQL command. As per the preferences of the student, 4 teams formed as given below. Insert these 4 rows in the table. Row 1 is Team Titan, row 2 Team Rockers, row 3 Team Magnet, and row 4 Team Hurricane. Show the content. Yes, show the contents of the table. Team और last पे क्या करना है? Create another table, match details and insert. ठीक है, ये सारा डाटा हमने उसके अंदर insert करना है. Then is use the foreign key constraints to match details with the reference to the team table. तो दो टेबल की हम फॉर्मुलेशन करनी है. एक टेबल है जिसमें टीम की सारी डिटेल है और दूसरे के अंदर हमारे पास मैचेस की डिटेल है. यस वंशिका, आप आंसर कर सकते हो कि किस एट्रीब्यूट को हम जो है वो फॉरेन की रखेंगे इसमें? Match ID. मैच आईडी तो Sir, I think team ID, because it is on both. It is in both the tables. ये सेकंड है. सेकंड में कहां पे है टीम आईडी? ये जो Sir, फर्स्ट, उन्होंने बोला हाँ फर्स्ट टीम आईडी सेकंड टीम आईडी लिखा हुआ है. तो यस बिकॉज yes ये टीम आईडी बनेगा because team id is in the first table also and team id we will use from the second table also. so इसी के बेसिस पे we can go with this foreign key concept. इसमें हमें इस टेबल में हम लगाएंगे foreign key. इस टेबल में हम foreign key बनाएंगे and we will match with the primary key of the other table. तो ये सारी कंस्ट्रक्शन करनी है. that it consists of number of steps. फिर बाद में 6th लेवल पे फिर से 6th क्वेश्चन में बहुत सारे फिर से इसके ऊपर कंडीशंस दी हुई हैं. क्लियर? सो दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एक छोटा हमारा MySQL का एक छोटा सा प्रोजेक्ट ही बन जाता है जिसमें ये 6-7 क्वेरीज दी हैं. इस तरह का क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम में नहीं आएगा, बट अगर आपको प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस लेवल पे या प्रोजेक्ट में ये बहुत हेल्प करेगा. दैट इज how all these steps have been basically constituted, because ये काफी बड़ा क्वेश्चन है. it cannot be asked in a 5 marks में से भी ऊपर चला जाएगा ये. ठीक है जी. so this is how अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी जो अभी तक हमने फॉरेन की कंसेप्ट के ऊपर फोकस जो किया हुआ है. so last we move to the question number 7. so yes, differentiate between the following command. yes Harshita, alter and update. Sir, alter is part of data definition language. It can the table, whereas update is part of data manipulation language. It is used to bring changes in the contents of the data. yes, very good. Next भी कर दो cover delete and drop. Sir, in delete, we can delete like the contents of the table. If we delete a content, drop the table, then it is completely deleted, erased from the database. ठीक है. so at the end of the class I want to say
कि वी हैव डिस्कस्ड द नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज कि किस तरह का एग्जाम में दैट इज पहले तो हमारे पास पहले हम ऑनलाइन में सारे एमसीक्यू डिस्कस करते थे बिकॉज बट इन दिस टाइम यू विल बी हैविंग फिल इन द ब्लैंक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है, जैसे वन वर्ड में आंसर करना है, वन लाइन में आंसर करना है. सो दीज क्वेश्चन हैव बीन एडेड दिस टाइम बिकॉज गूगल फॉर्म में तो वन वर्ड को इवेल्युएट करना चैलेंजिंग है, ठीक है, बिकॉज वो मैन्युअली हो सकता है या लाइक दैट वे. सो देयर आर सर्टेन चेंजेस, हमने उसको काफी डिस्कस कर लिया हुआ है, क्लियर. और आपकी जो प्री बोर्ड 1 में भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी हाउ टू आंसर दिस, ठीक है. स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो सो यू कैन आस्क, आप व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हो, कहीं पे भी आपको पढ़ते टाइम कोई क्वेरी आ गई कि सर ये इसमें से किस तरह का क्वेश्चन आएगा, सो लाइक यू कैन आस्क दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. तो वंशिका एक बार बता दो कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. Sir, up to 21, we have to attempt out of the 21, we have to attempt 15 questions that Yes. are 1 mark. 22nd and 23rd question is. Yes, वंशिका इसमें बता सकते हो ये जो हमने 15 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं 21 में से, सो हाउ यू विल गो फॉर दैट, आप कैसे उसको आंसर करोगे, क्योंकि 21 मींस गिवन क्वेश्चन तो 21 है, आपने आंसर करने हैं 15, सो हाउ यू विल आंसर दोस 15 क्वेश्चंस. Sir, those questions which I know more that I have a confidence that yes, this question will be correct because first. तो जो आपको बेस्ट 15 क्वेश्चन आते हैं वो आंसर करने हैं आप लोगों ने. बेसिकली अभी तो आप लोग तो ऐसे आंसर कर दोगे चलो सारे के सारे 21 आंसर कर दो, सर चेक करते रहेंगे, बट इट हैपेंस इन द फाइनल एग्जाम कि एग्जामिनर 15 क्वेश्चन चेक करेगा पहले. अगर आपके 15 में से गलत हो गए तो उसको कंपनसेट नहीं करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में से. So this is the meaning of answering 15 questions. जो आपको बेस्ट आंसर आते हैं that you have to answer. ठीक है. Yes, next वंशिका. 22nd, 23rd question are of case-based questions. They are also 1 marks. उसमें भी पांच क्वेश्चन दिए होंगे, चार क्वेश्चन करने हैं, उसमें से पार्ट्स बने होते हैं उसके अंदर. Yes, next. 2 questions marks without choice, internal choice will be there. Yes. 4 questions of 3 marks without choice, internal choice will be given, and 3 questions of 5 marks, internal choice will be there. हाँ, 5 मार्क्स में एक के अंदर इंटरनल चॉइस है, 3 के अंदर भी एक क्वेश्चन के अंदर, 3 मार्क्स वाले के अंदर भी एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस है, और 2 मार्क्स के अंदर 2 क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस. यस दिलबाग. सर जो नहीं आता सर उसको फिर ब्लैंक छोड़ देना. और जो नहीं आता उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्या करना है, उसकी जगह कोई वहां पे फोटो थोड़ी बना के आ जाओगे आप. जो नहीं आता उसको छोड़ते जाओ साथ साथ में. आप बेस्ट मैं आपको आंसर करता हूँ बेस्ट वे क्या होता है. जैसे हम क्या करते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर सीक्वेंशियली. पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ. अगर लेट्स से आपको फोर्थ क्वेश्चन नहीं आता, फिफ्थ आता है, तो आप फोर्थ को छोड़ दो, फिफ्थ वहां पे क्वेश्चन नंबर मेंशन करो कि मैं फिफ्थ कर रहा हूं, मैं अभी 7th का आंसर कर रहा हूं, मैं 8th का आंसर कर रहा हूं. प्लीज गिव द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर ओवर देयर. जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जो आप छोड़ रहे हो उसको स्किप कर दो. जैसे आपका 7th का आंसर नहीं कर रहे, 6th का आंसर किया, उसके बाद 8th क्वेश्चन है, तो आप वहां पे प्रॉपरली प्लीज राइट द प्रॉपर क्वेश्चन नंबर ओवर देयर. ये नहीं कि आप आंसर 8वां कर रहे हो और सीरीज में वो 7वां बनता है, आपने 7 नंबर वहां पे मेंशन कर दिया. So please be careful. +1 आपकी क्लास होगी है, बड़ी क्लास है ये. So you have to work according to the instructions given in the question paper. ठीक है. तो ये प्री बोर्ड में थोड़ा टेस्ट भी हो जाएगी, आप किस तरह से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हो एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड बैक. यस दिलबाग, हो गया आंसर आपका? यस सर. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. और अगर आपकी कोई डाउट है सो यू कैन बेसिकली ब्रिंग दोस डाउट्स आल्सो. थैंक्स बेटा. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.